या तो पार्शियली, या तो वो पार्शियली सबमर्ज हो जाता है या फिर फुल्ली सबमर्ज होता है ना। पार्शियली हम्म। क्यों सबमर्ज होता है या फुल्ली सबमर्ज क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हम डालते हैं उसकी डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आयरन बॉल को अगर डालोगे तो वो पानी में डूब जाएगी, लेकिन प्लास्टिक बॉल नहीं डूबेगी, सेम वेट की, है ना। यस। ओके। तो होता क्या ओके। है कि द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग हमेशा, ऑब्वियसली बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा through the center of the gravity of the body, and this force has a tendency to sink the body। ठीक। और जो बॉडी को फोर्स लगाना पड़ता है टू गेट सिंक इन और फ्लोट और टेक सम स्पेस इनसाइड द लिक्विड, इट applies the force against the buoyant force of that liquid, which displaces the center of the gravity of the liquid displaced। ओके। 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 ये ओके। दो पॉइंट समझ में आए ओके। ऊपर वाले? जल्दी से इन्हें लिखो प्लीज, ड्रॉ करके, फिर आगे इसके केसेस पढ़ेंगे। अच्छे से लिखना भैया, ठीक है। ओके। डन। मैम। डन। डन। यस, यस, यस। ओके। Okay. Now the W, the weight, which is, we know that the weight is equals to the whatever volume of the water that object displaces. Yeah. Volume of that body times the density V rho G. Yeah. हम्म। And the क्लियर। buoyant force will be volume of the object which is submerged inside the liquid, this much. Okay. ओके। ओके। Times the liquid and that. Yeah. ओके। Just a minute. Huh? Don't write now. Okay. So what is that? It is obviously the upthrust is maximum. Obviously, upthrust is maximum. That is why the body is floating. It is not completely submerged. Okay. So depending on whether the maximum upthrust is less than, equal to, or greater than the W, then the cases are there. If W is greater than the buoyant force, W means the weight of the body is equal to the buoyant force or less than. So when weight of the body is more than the buoyant force of the liquid, the object will get sink in. Okay. ओके। Yeah. And when the W is
same, equal, so the body will float on the surface. Okay, just like Yes. a sponge, you can say. Yeah, Yes. Yes. Sponge. okay. Hmm. And when W is less than, If when W W is is less than, then the body will be, body is floating going to be float at top, at the top of the at surface. the top. Okay, only due Yes, to the ma'am. submerged part of the body, thus the apparent weight we can solve it. Okay, Yes, ma'am. when W is equal to the buoyant force, the body will sink, fully sink, but it will float on the surface. And when W is less than, okay, hello, Hmm. Yes. Yes, ma'am. okay, Okay. so body will partially sink in and it will float on the surface as well. Okay, Okay. 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 बात समझ आई? हाँ जी जी मैम. कोई बात नहीं है, हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, इट्स ओके, मुझे समझ I'm में आती not है. very fluent, so it's up to you. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो स्टार्ट करो भैया. इसे अब आप ये तीनों केस अच्छे से लिखो, इसके लिखने के बाद है ना, और फिगर जरूर इसको से बनाना. इसके ऊपर नोट्स ऑलरेडी है. केसेस लिखना है, केसेस के पॉइंट्स लिखो और ये फिगर बनाना है. एक्सप्लेन नहीं करना, ओके. एक्सप्लेन बाद में अपना घर पे करना उसको, होमवर्क ओके. में. हम्म. I'm just coming in 2 minutes, okay? Just in ओके. 2 minutes. Till then you do. हम्म. हो गया बेटा? 1 minute.
Yes, ma'am. Done. Ma'am. ओके। हाँ. हाँ जी, हाँ जी। Yes, ma'am. Done. स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, ओके। So here, so the weight of the body is equal to the weight the liquid displaced by its submerged part, है ना? आर्किमिडीज Yes, प्रिंसिपल, ठीक yes, है? ma'am. Yes, है ना? ma'am. अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लोटिंग बॉडी एंड द लिक्विड, ठीक है? तो Hmm. हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कि अगर हम कहें कि लिक्विड का वॉल्यूम कैपिटल भी है और उसमें ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम स्मॉल भी है, तो जो वॉल्यूम्स का रेशियो होगा वो उनकी डेंसिटीज के रेशियो के इक्वल होगा, है ना? Equal. वेट ऑफ द Okay. बॉडी क्या होता है? वी रो जी। Zero G. तो रो क्या है? रो यहाँ पे है Density of ऑब्जेक्ट liquid. या सॉलिड का डेंसिटी, नहीं नहीं सॉलिड का बेटा, Okay. Okay. Solid का density. Okay. ठीक है? हाँ। और यहाँ पे जो बॉयल्ड फोर्स होगा वो लिक्विड के लिए होगा, यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी होगी। तो ये और ये अगर हम इक्वल रखते हैं, जब बॉडी वेट ऑफ द बॉडी और बॉयल्ड फोर्स सेम है, तब ये Okay. हमने इक्वल रखा तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। जी और जी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि अ, हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टाइम्स डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ द Okay. लिक्विड, ठीक है? Okay. ठीक। ठीक. ये एक्सप्रेशन जल्दी से एक्सप्लेन करिए। नोट्स में. हाँ भैया, इस पे न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे ना। ओके ओके.
हो गया बेटा? I'm almost with 1 minute.
Done. डन। ओके। तो ये एग्जाम्पल। अच्छा, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, बेसिक बेसिक, कि फ्लोट्स आयरन शिप फ्लोट कर लेती है जबकि आयरन निडल सिंक हो जाती है ना? Okay. Mm-hmm. है ना? तो है क्यों कि इफ यू प्लेस आयरन नेल ऑन द वाटर इट विल सिंक, क्योंकि आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है। लेकिन अब आयरन शिप भी तो, अब उसी आयरन की तो शिप भी बनी हुई है, तो वो कैसे Mm-hmm. फ्लोट कर लेती है ना? सो दिस इज हाँ. बिकॉज द शिप इज हॉलो एंड एम्प्टी इनसाइड, है ना? और एयर होती है जिसकी वजह से वो रिस्पेक्टिव डेंसिटी जो है ऑल ओवर सबमर्ज वाटर से कम हो जाती है, और वो उसमें क्या हो जाती है, सिंक वो करती है, फ्लोट कर लेती है। ठीक। Okay. अच्छा। Okay. अच्छा, खाली वाली शिप में चलो एयर है, वो नहीं सिंक होती, लेकिन अब लोडेड वाले का क्या मसला है? तो कार्गो में जो सेलिंग शिप होती है उसका वेट इंक्रीज होता है ड्यू टू द डिस्प्लेस। वो उतना ही पानी, जितना उसका वेट इंक्रीज ऊपर से करोगे उतना ही वो नीचे से पानी डिस्प्लेस कर देती है, और प्रेशर मेंटेन रहता है, और वो फ्लोट कर लेती है। ठीक Mm-hmm. है ना? ओके। Okay. Okay. A ship begins to submerge more as it sails from sea water to river water। सेम बात है, रिवर वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो उसे ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करना पड़ता है कि नहीं? Mm-hmm. हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, दिख भी नहीं रही हो, मुझे पता भी नहीं चल रहा। Sorry. Yes. Archimedes principle. हाँ, वीडियो ऑन कर लो। Yeah. आज फोन यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। हम्म. हाँ, और फिर क्या है, फ्लेम सॉइल लाइन, है ना? तो ईच शिप हम्म. हैज अ वाइट लाइन पेंटेड ऑन द साइड, ठीक है? और उस लाइन के ऊपर अगर पानी जाता है तब होता है कि ओके, सम द शिप इज इन डेंजर और अ कार्गो इज इन डेंजर, एल्स सब चीज हम्म. ठीक है और शिप सेल कर सकती है। ठीक है। ओके. अच्छा, हम्म. हम लोग अभी हैं वाटर में अगर जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डूबने लगेंगे, सिंक इन होने लगेंगे, अगर इफ यू डोंट नो द फ्लोटिंग, है ना, स्विमिंग नहीं आती तो, है हम्म. ना, तो हम फ्लोट नहीं कर पाएंगे, हम स्विम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हाँ. डेड बॉडी की बात की जाए तो डेड बॉडी क्या करती है, फ्लो करती है, फ्लोट करती है ना? वन. करती है, बिकॉज उसमें वाटर भर जाता है, इसलिए। ओके. Okay. ओके. ओके. So an unloaded ship floats with its very small volume inside the water as the results. Sorry, मैं कहाँ बता रही थी? Flotation of human बता रहा था, sorry. हम्म. ये average density of human body depends on the proportion of its constituents like bone, blood, जो भी है वो object body हम्म. में जो भी substances हैं. It also depends on the amount of air in our lungs. ठीक। ओके. So ओके. average density of the body with empty lung is this much, while with the filled lungs is filled with air is this much, which is not that difference. Okay, उतना difference नहीं है। तो एक good swimmer can float in a water like a floating object with its lung filled with air and nose and mouth projecting towards above the surface, है ना? सर को बाहर रख के ओके. ओके. हम ओके. आराम से कर सकते हैं, ओके. है ना? हाँ हाँ. अच्छा, and it is easier to swim for a man to swim in a sea water than the fresh water। क्यों? क्योंकि मिनरल्स होते हैं उसमें, सी वाटर में तो हम्म. इसकी डेंसिटी इतनी इम्प्योरिटीज. होती है। हाँ, और फ्रेश वाटर में, रिवर वाटर में डेंसिटी होती है, तो देयर वाज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन सी वाटर, लेकिन हम्म. रिवर में ज्यादा सिंक इन रहती है बॉडी। ठीक है, ओके. जिसकी वजह से हमें ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करना पड़ता है। हम्म. ठीक। और जी. वहीं पे एक डेड सी है, सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मच मोर, देयरफॉर अ मैन कैन इजीली स्विम इन डेड सी। तो ओके. वो आराम से उस पे फ्लोट कर लेता है। हम्म. ह्यूमन की बॉडी से डेड सी में का पानी बहुत ज्यादा डेंस होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट, ह्यूमन एज अ ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। ओके। ओके. 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 और अंडरस्टूड. जस्ट अ मिनट, हम्म. ये वाला जरा पोर्शन पढ़ना, फ्लोटेशन ऑफ सबमरीन कैसे करता। ओके.
Done. Please explain me how submarines float. Submarines. Submarine has has a tank for flotation in its front and rear parts, which wait, एक हाँ, minute. Wait 1 minute. देखो सबमरीन को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है, कुछ फिश के शेप Hmm. का, और एक नैरो स्ट्रक्चर दिया जाता है कि वो Yes, yes. अंडर प्रेशर में भी वो क्या कर सके, फ्लोट कर सके, है ना। सेवरल बैलेंस में टैंक्स इन द फ्रंट ऑफ द रियर पार्ट्स होते हैं, शोज द पोर्शन ऑफ द सबमरीन When टू it wants एक्सप्लेन to इट्स फ्लोटेशन। go underwater, the ballast filled with water, हाँ, ठीक है, और बैलेंस टैंक आगे और पीछे दिए जाते हैं। तो right? सबमरीन कैन बी Okay. मेक, जस्ट अ मिनट, can made to dive into water or rise up to the surface of water and when it is desired. So if a submarine is to dive, its ballast tanks are filled with water, है ना। और जब भी सबमरीन को Hmm. ऊपर सरफेस पे आना होता है तो उसको हम खाली कर देते हैं, पोस्ट आउट इन द सी Okay. फॉर अलाइंग टू कंप्रेस द एयर इनटू द टैंक। और जैसे ही टैंक्स में एयर आ जाती है तो सबमरीन का वेट बहुत ही लेस हो जाता है और वो क्या करती है, सरफेस पे आके फ्लोट करती। ठीक। Okay. हाँ, ठीक. ओके। अच्छा, जैसे टाइटैनिक वाले भाई साहब थे कि आइसबर्ग से बड़े टकरा के भाई साहब. टाइटैनिक टूट गया था। अरे वही, क्या नाम था उसका, वो जो उनका सेलर था, बड़ा अच्छा नाम था, मैं भूल गई। बहुत ही क्या अच्छा किसका? इंजीनियर था, जिसने बनाया था, वो इंजीनियर भी वहां पे था एक्चुअली। ओके. मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था उसका, पिक्चर में नहीं पूछ रही हूँ। पता है, पिक्चर में तो श्योर है. नहीं, पिक्चर में इंजीनियर का नाम तो सेम है, क्या नाम है उसका। अरे, जोसेफ वेल ये कुछ. अब जो भी था वॉट एवर, छोड़ो, क्या फर्क हाँ. पड़ता है, क्या करेंगे हम जान के। अच्छा। आ, हम्म. तो वो उन्होंने क्या किया था कि वो आइसबर्ग से, क्या नाम था उसका, तुमने भी कुछ नाम बोला ना। जोसेफ वेल. अच्छा, मुझे चीफ याद नहीं, इंजीनियर कंफर्म कुछ नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू होगा गूगल. होगा। अच्छा, गूगल पे है क्या। हाँ, होगा ही हाँ. ऑब्वियसली। तो वो क्या किया कि भैया आइसबर्ग का बहुत छोटा सा पार्ट ऊपर था, जिससे वो टकरा गया और वो टूट गया। लेकिन हुआ क्या था कि हम्म. आइसबर्ग का मैक्सिमम पार्ट नीचे की तरफ था। ऊपर से तो जो टूटा ही टूटा, लेकिन नीचे से उसे हम्म. बहुत ज्यादा डैमेज मिला था इनसाइड द वाटर। जिसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ह्यूज मासेस ऑफ द आइस नोन ऑफ आइस नोन एज आइसबर्ग जो फ्लोट करते हैं। और उनमें क्योंकि आइस की डेंसिटी बहुत कम होती है वाटर से, सेम अमाउंट ऑफ द हाँ. H2O सॉलिड फॉर्म में, उसी H2O में वो फ्लोट करता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द ओके. आइसबर्ग जो है, अगर उसे निकालेंगे हाँ हाँ श्योर. विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, विद द फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, है ना हम्म. मैडम। हम्म. हाँ. यस. मेरे से बात करिए, किसी और से भी बातें कर रही हो। हाँ, आपसे क्यों? कोई नहीं है रूम में. अच्छा। अच्छा, मुझे लगा कि तुम दो दो लोग से बातें कर रही हो तो मेरी बातों का जवाब बाद में दे रही हो। अच्छा। फ्लोटेशन ऑफ द फिश, नहीं. उसमें भी यही है कि पहले जब वो नीचे होती है तो उनके उसमें गिल्स में पानी भर जाता है, और जब वो ऊपर आती है तो वो गिल्स से मतलब रेस्पिरेशन से वो पानी को बाहर करती है अपने ओके. लंग्स से, और वो ऊपर की तरफ भी आ सकती है ना। हम्म. ओके। एंड राइजिंग ओके. ऑफ बलून्स द सेम थिंग, है ना। एयर बलून्स जो हाइड्रोजन वाले होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से वो हवा में उड़ते हैं। वो देखिए ना, हाइड्रोजन सिलेंडर वाले जो बलून्स होते हैं, ओके. उसमें मिलते हैं मेले में। हाँ. मेला मेला देखा है वाटर कभी। बलून. अच्छा, हाँ, मेले में बलून हाँ, मिलते हैं, नहीं हाँ. नहीं, ऑफ कोर्स देखा है. वाटर बलून नहीं भैया, वाटर बलून नहीं नहीं, नहीं। हॉट एयर बलून बात कर रही और थी. हॉट हाँ एयर बलून, हाँ, वाटर नहीं. हॉट एयर बलून की बात कर सकते हैं, लेकिन वो वाले मेले में जो देखा होगा कि वो जो तुम आपका लोगों के साइड यहाँ में वहां पे इंटरनेट बंगाल कम है, में जो बनता से है। सुनाई नहीं दे रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो तुमने वो देखा होगा ना, नवरात्रि में जब दुर्गा पूजा लगती है, तो वहां पे साइकिल पे सिलेंडर पे बांध हम्म. करके बलून्स को बेचते हैं उसमें, तो हाइड्रोजन बलून्स, है हाँ ना, जी जी. या हीलियम गैस होती है, जो कि जनरल एयर एटमॉस्फेरिक एयर से बहुत कम होता है। ओके। ओके. ठीक है।
ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करोगे भैया? और इसके बाद क्या टॉपिक शुरू करना Okay. है हमें रोटेशन के बाद? इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर हीट नहीं करवाया है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। उसके बाद लाइट। अच्छा चलो, कल मुझे कब मिलोगे बेटा? कल कल हम्म। इवनिंग टाइम। कितने बजे? आप बोलिए, मैं तो इवनिंग में फ्री रहती हूँ ऐसे। लेकिन इवनिंग में मैम नहीं अवेलेबल होंगी, सुष्मिता मैम। नहीं, मैं सॉरी। अवेलेबल हूँ, कल शाम को आई एम अवेलेबल। अच्छा अच्छा, ओके आई एम ओके ओके। अवेलेबल। हाँ। ठीक 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 है मैम, मैं बस अभी चेक करके बताती हूँ। और मॉर्निंग ओके। टाइम में नहीं है तब समय बेटा? 10 AM पे, 10 AM या 9 AM में? नो नो नो, आई हैव ट्यूशंस। कितने बजे से भैया? ऐसे ही टाइम से। नहीं नहीं, मॉर्निंग नाइन, अच्छा तेजस्विनी, मॉर्निंग नाइन टुमारो 9 AM पे मॉर्निंग भी ट्यूशन है? 1 बजे, 1 बजे या 1:30 बजे, या 2 बजे ऐसे टाइम पे तुम फ्री हो तेजस्विनी? um, नहीं थोड़ा मैम, डिफिकल्ट है क्योंकि शाम हमारा को जो ही रखते सर हैं। है वो मतलब रेंज मतलब हाँ हाँ, टाइम उनका कोई मतलब फिक्स नहीं है ऐसा। डिफिकल्ट है बताना कंफर्म नहीं क्योंकि है। जो हमारे अच्छा सिखाते हैं इन्फॉर्म नहीं है ऐसा ही। मतलब 10 बजे के बीच में अच्छा। 2:30 बजे, ढाई बजे मतलब चलता रहता है ऐसे। 2:30 अंटिल 2:30 हम्म। मतलब जब आए। अच्छा। हाँ ऐसा ही है। हम्म। उसमें मैं इवनिंग में फ्री रहती हूँ। ठीक है, इवनिंग में फ्री रहते हो? हम्म। ओके। इवनिंग में कितने बजे से फ्री रहते हो बेटा? 5:30। 5:30 से, ठीक है। मैं सुष्मिता मैम को मैसेज कर दूंगी, तो होपफुली विल मीट आफ्टर दैट, है ना, 5:30 इन द इवनिंग टुमारो। ओके। ठीक है। जी। ओके। ओके, स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ओके, चैप्टर डन, फर्स्ट न्यूमेरिकल। एक्सप्लेनेशन समझ आया है भैया? यस मैम। ऐसा कुछ रह तो नहीं गया? ये हम लोग ने कर लिया था, बट हाँ अभी कुछ ऐसा रह गया एक्सप्लेनेशन जो समझने को, मुझे बता देना, हम लोग वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके। ओके ओके, क्लियर। ओके।
हो गया बेटा? Wait, 1 minute. Then बेटा? Done. Oh. Let's keep it for today like that. Okay? कल हम लोग वापस से जब मिलेंगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल करेंगे अनसॉल्व वाले और विल डू स्टार्ट विद द लाइट. Okay. ठीक है? ओके बेटा. थैंक यू. Okay. बाय बाय. I will send the PDF. बाय. Bye.